Namaste, everybody, and hello. Welcome all to another episode and the podcast by कहानियाँ. शुरुआत करने के पहले मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर. यस, आप सबने ये सुना होगा कि एज तो सिर्फ एक नंबर है. कुछ भी करने के लिए जिंदगी में एज डजंट मैटर, राइट? यस, हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो इस बात को 100% जस्टिफाई करते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. फिक्शन स्टोरीज पढ़ी हैं आप लोगों ने? मैं फिक्शन पढ़ती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है बिकॉज फिक्शन टेक्स यू टू एन अनदर वर्ल्ड. फिक्शन की कहानियाँ आपको इमेजिनेशन, विजनरी बनाती हैं और एक टाइम ट्रैवल जैसा आपको कहानियाँ फीलिंग देती हैं, राइट? एंड आप सबकी फेवरेट होगी हैरी पॉटर. यस, सो फॉर एग्जाम्पल J.K. रोलिंग ने जब हैरी पॉटर लिखी थी सो उनका एज अप्रॉक्सीमेटली 40 ब्रैकेट में था. ठीक है, हमारे पास जो आज गेस्ट हैं वो सिर्फ 15 years के हैं. Yes, you guys have heard it right. He is just 15. He is a meticulous kid. मैं उनको kid बोलूँ कि larger than life character बोलूँ, no idea. आप खुद उनसे मिलेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि कौन है ये. And his name is ध्रुव धाकर. तो हमारे साथ इस कहावत को, इस प्रोवर्ब को जस्टिफाई करने के लिए जो गेस्ट ऑफ ऑनर है, he is ध्रुव धाकर. He is just 15 years old. He is an author of 3 internationally published books, couple of anthologies. He has done poetry also. He's a TED Talk speaker as well. He's studying as well, and he's meticulously brilliant in academics. So let's welcome Dhruv to our studio and over to him. और उनसे सुनते हैं कि वो आगे अपनी जिंदगी और जर्नी, राइटिंग जर्नी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं. So I'm so happy to welcome Dhruv in our studio. We have Dhruv Dhakar with us. जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि age is just a number. He is a real life example to prove that proverb absolutely correct. Dhruv is an amazing kid. He is, I think, best in everything. So welcome Dhruv to our studio. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे आज बात कर पा रही हूँ. ध्रुव की 3 किताबें हैं जो कि one of the book is the Amazon bestseller. One book has been chosen and showcased in the Brooklyn Book Fair. इन सब के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और ध्रुव हमें सब डिटेल में आप ऑडियंस के लिए बताएंगे. सो ध्रुव, वेलकम टू आवर स्टूडियो एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव यू. आप प्लीज आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए. इतने कम एज में सोचा कैसे ध्रुव लिखने के लिए? व्हाट इंस्पायर्ड यू? बचपन से ही मुझे एक पढ़ने का शौक था. My parents always influenced me, always told me and surrounded me with books, even when I was young, even when I could not read, or even when I could not talk. So books were a part of my family. So हमेशा जब आप books पढ़ते हो तब दिमाग में thoughts आते हैं, तब दिमाग में बातें आती हैं, और उसी तरीके से हर बुक रीडर के दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही है. और मैंने उसको एक बुक्स के फॉर्म में बाहर आउटपुट दिया और बस ये तीनों बुक्स आ गई. बट ये जो तीनों बुक्स आ गई ना ध्रुव, ये बहुत ही ब्रिलियंट है. आई हैव रेड ऑल 3 ऑफ योर बुक्स एंड द बेस्ट व्हाट आई लव्ड इज अबाउट दिस, द कैस्पियन दैट फ्लाइज. आप, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जो लोग फिक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, J.K. रोलिंग का एग्जाम्पल दिया था, it's like far better. It's like very short, crisp story जो एक protagonist Caspian को बात करता है, right, Dhruv? So can you just elaborate more about your Amazon bestseller? Okay, so this is my second book, The Caspian That Flies, and this was actually my first novel. My first book was a group of short stories, you can say. So मेरी second book में follows a protagonist who becomes transformed into a magical creature called the Caspian, which is similar in features to a dragon but far more powerful. So it basically details about how he slowly rises up in the ranks in his kingdoms and fends off his enemies. अगर आपको आगे पढ़ना है तो आप ये खरीद सकते हैं. It's available on all the major platforms. Absolutely, Dhruv. And as you mentioned, I love the best part about it is how he rises, you know. Like you have mentioned about the battles, the warrior, and then he becomes the kingdom, and it's beautiful, right? You know, and the way you have explained, and
so glad that Dhruv has written this book. I am sure अगर आप इसको और elaborate करके part 2 ले आए तो audience would be love to see it, Dhruv, in future times. But मेरा एक question था आपसे, Yes. Dhruv, आप सिर्फ fiction लिखते हैं. हाँ. Any specific reason कि आपको fiction ही क्यों लिखने का एक inspiration, या why only fiction? Because I know, for my audience I should tell, he's a voracious reader. He's like a keen reader. He's at Hawkeye to read everything. He's that kid with us today. So fiction ही क्यों Dhruv? Any specific reason? Because first of all, fiction एक हर young child के लाइफ में एक बहुत important part play करता है. या आप खुद एक फैंटेसी बनाओ या आप दूसरे की बनाई हुई फैंटेसी पढ़ो, ये हमेशा आपके पास ही रहता है. मैंने शुरुआत फिक्शन बुक्स के साथ ही की थी. And there was a time where I had not read any non-fiction books. I'm of course starting to go in that non-fiction path. I'm trying to read more and more non-fiction. So, but fiction में एक बात थी जो मुझे कहीं और ले जाती थी. And that was just magical for me. And therefore, I wanted to read fiction. I wanted to write fiction. And I'm slowly मैं कोशिश कर रहा हूँ कि apart from fiction, I try to write non-fiction as well, because एक तरफ फिक्शन में आपको उन नैरेटिव्स में खींच लाता है, उन स्टोरी में खींच लाता है. नॉन फिक्शन आपको बताता है कि उन स्टोरी से निकलना भी बहुत जरूरी है. Wow, that was amazing. So your journey through my dreams and the tree of life, which I mentioned, these are 2 more books जो ध्रुव ने लिखी हैं, और वो भी आपको इसी imaginative world में, fiction के world में लेके जाती हैं, जो I think जैसे ध्रुव ने कहा हमारे पास रह जाता है. Because sometimes what we want to achieve, वो एक डिफरेंस होता है ना हमारे रियलिटी और मिथ में, वो शायद फिक्शन और नॉन फिक्शन खत्म एक छोड़ता है, वो कड़ी है दोनों के बीच में. बट जैसे कि ध्रुव ने मेंशन किया कि फिक्शन इज हिज चॉइस, एंड वो फिक्शन उससे लिखते हैं कि वो हमारे पास स्टोरीज रह जाती हैं, and they teach us about the past and the future and our present, and they give us a lot of reality check also as compared to non-fiction. ध्रुव, एक सवाल था मेरा आपसे. आपने जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स लिखा है एंड ट्री ऑफ लाइफ है. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जर्नी थ्रू ऑफ ड्रीम्स जब मैं पढ़ रही थी, उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल आपने स्टोरीज फ्रेम की हैं, एंड दे आर ऑल्सो फिक्शन. सो एक आप पॉजिटिव चेंज, क्योंकि फिक्शन में भी पॉजिटिव चेंज होती है, शायद बहुत सारे लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, बट सोचते हैं कि यार बहुत तो इमेजिनरी वर्ल्ड है, कुछ भी लिख दिया, साई-फाई है, टाइम फ्लाइज एंड ऑल. बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बीइंग एन ऑथर माई सेल्फ, कि फिक्शन में भी एक कहीं ना कहीं मोरल होता है. जर्नी थ्रू टीम्स में मुझे लगा ध्रुव आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे उन छोटी छोटी स्टोरीज में. कैन यू एलैबोरेट मोर अबाउट दैट? मेरा पर्सनल बिलीफ यही है कि विदाउट अ स्टोरी, विदाउट मोरल, एक बुक खोखली हो जाती है, एक बुक हॉलो हो जाती है. इट डज नॉट गिव द रीडर टू रिमेंबर समथिंग विद, कि कुछ रहना चाहिए जिससे कि आपको बुक याद रहे. दैट इज व्हाट मोरल इज. तो मेरे हिसाब से द जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स जो 15 शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है, वो बेसिकली अलग अलग वैल्यूज पे ट्रेड करती है. जैसे अपना फ्रेंडशिप हो गया, टीम वर्क हो गया, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड बेसिकली फाइटिंग आउट द हार्डशिप्स यू फेस इन लाइफ. क्योंकि एक जिंदगी जो है वो एक आसान बात तो है नहीं. मैंने भी बहुत छोटा ही कवर किया है, मैं बात कुछ ज्यादा कर नहीं सकता इस पे, बट जिंदगी, लाइफ इज नॉट इजी. तो मेरी बुक से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी लोग मुझे पढ़ते हैं वो ये समझे कि लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रुक गए तभी आप एक तरह से खत्म हो जाओगे. वाओ ध्रुव, दैट्स अमेजिंग. आई थिंक हमारे ऑडियंस को एक ये बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा इससे, और शायद ये एक लर्निंग भी होगा. जो लोग सोचते हैं कि फिक्शन क्यों ही पढ़ना है, व्हाट इज देयर इन फिक्शन, बट फिक्शन आल्सो हैज लॉट ऑफ लर्निंग इनटू इट. इट टेक्स यू टू अ जर्नी ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. क्योंकि जो कहानियां होती हैं वो भले ही फिक्शन होती हैं, बट वो कहीं ना कहीं जिंदगी से ही ली होती हैं, और फिर उन्हें बुना जाता है एक तरह के फिक्शन में, एक तरह का कैरेक्टर देके. सो दैट्स व्हाट ध्रुव इज ऑल अबाउट. और जैसे कि ध्रुव ने मेंशन किया था अभी कि मैं ज़्यादा क्या बोलूँ क्योंकि मेरा जर्नी इतना ही रहा है, बट फॉर मी ध्रुव, आपका जर्नी एट द एज ऑफ 15 ऑल्सो इज इनक्रेडिबल. क्योंकि दिस विद मी राइट नाउ, जो ऑडियंस देख रहे हैं, इट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ रिज्यूमे ऑफ आवर गेस्ट ऑफ ऑनर टुडे. ये पूरा सेट जो है, ये इनका 15 साल का जर्नी भी मुझे लगता है कम है ध्रुव.
आई एम सो ग्लैड कि आपने इतना अचीव किया है. I want to ask you about your achievements because what I see in these papers is a lot of achievement, from the TED Talk speaker to be on Spotify to the amazing elite media coverage. Then he is an accidental poet as well. Apart from that, academically ध्रुव excel करते हैं. So I think ये एक larger than life वापस मैं बोलूँगी because आप बहुत ही brilliant kid हैं. क्या आप हमारे audience को आपकी इस journey के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? मेरी अचीवमेंट्स की लिस्ट मैं अभी भी बहुत बढ़ाना चाहता हूँ, बट इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आई हैव बीन कवर्ड बाय लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, फॉर एग्जांपल दैनिक भास्कर, अग्निमांड, व्हिच आर द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स इन इंदौर एंड मध्य प्रदेश. एंड ऑल्सो मैं क्लास में ITC क्लासमेट की ऑलराउंडर जो प्रोग्राम का फिनाले था इन दिल्ली, मैं वहाँ गया था एज अ स्पीकर. सो दैट इज़ अ हाईलाइट ऑफ माई जर्नी, बिकॉज उस टाइम में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है. कई लोग हैं मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड. मेरे साथ जो ये देख रहा है वो भी मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है. टैलेंट हमारे हर जगह में मिलता है. एंड ऑल आई बेग यू इज टू, आप एक बार उसको एक्सप्लोर करें, एक बार उसे ढूंढे जिस प्रकार मैंने ढूंढा था. एंड देन एक बात होती है कि आपको कुछ भी चीज़ को रिफाइन करना पड़ता है. और ये जो मैम मेरी जर्नी की बात कर रही थी, और उसी प्रकार से पहले जब आप फर्स्ट टाइम जब राइट आफ्टर माई फर्स्ट बुक अगर आप मुझे मिलते एंड आप अभी मुझे मिल रहे हो, आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. मैं एक बहुत नर्वस पर्सन था कि मुझसे कई बार बिफोर गिविंग इंटरव्यूज मुझे एक वो रहता था कि मैं रेडी नहीं हूँ. पर अभी एक वो रहता है, एक्साइटमेंट रहता है कि मुझे किसी और से बात करने को मिलेगा, किसी और जो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, जो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल है, उससे बात करने का मौका मिलेगा. एक वो एक्साइटमेंट मेरे में है. और यही मेरी आई थिंक जर्नी है. जर्नी, अगर आप एक जर्नी के थ्रू जाते हैं, आपकी सो कॉल्ड जर्नी, और आप बदलते नहीं है तो एक जर्नी नहीं है, वो बस आप मानते हैं, क्योंकि जर्नी इज ऑल अबाउट चेंज. और वही चेंज मुझे इधर तक लाया है. So wow, Dhruv, this is amazing. I think audience will gonna really love this part of yours क्योंकि the way you explained your journey seems like you're like far more of your age. क्योंकि मैं बार बार वही बोल रही हूँ आप लोगों को कि he is just not a kid right here. He's a package of everything what we have. So जैसे ध्रुव ने बोला कि never give up attitude हो गया, और journey through life है, seeing all the goodness in life and keep moving. फर्स्ट बुक के बाद ही वॉज हेजिटेंट टू टॉक ऑल्सो फॉर एनी इंटरव्यू. आपको थोड़ा सा हेजिटेंट होता था. नाउ यू आर कॉन्फिडेंट. सो इस पूरा जर्नी में जैसे आप आज कॉन्फिडेंट हैं, आई एम श्योर आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होगा इसमें. वुड यू लाइक टू से समथिंग टू ऑडियंस, स्पेशली द ऑडियंस जो आपके एज ग्रुप के हैं? बिकॉज आई एम श्योर जो आपको सुनेंगे और जो आपके एज ग्रुप में फॉल करेंगे, डेफिनेटली वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे. बिकॉज आप कैसे इसको मैनेज करते हैं. यू आर अ स्टूडेंट ऑल्सो, यू आर स्टडिंग ऑल्सो, एंड डेफिनेटली आपके एस्पिरेशंस होंगे. सो कैन यू टेल आवर ऑडियंस जो स्पेशली आपके एज ग्रुप के हैं कि आप किस तरह से इस जर्नी को मैनेज कर सकते हैं, लाइक टू हसल बिटवीन योर राइटिंग पार्ट और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एक्स्ट्रा करिकुलम, एंड वेन एवर यू फील लो तो रुकना नहीं है. Can you just give some points on there to, especially to your audience जो आपको सुन रहे हैं और जो आपके favorites हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं भी इस एज का ही हूँ, और एक हमेशा एक एटीट्यूड रहता है मेरी एज के लोगों में. मुझे भी बहुत बार फील हुआ है, मुझे भी अभी भी फील होता है कि मैं सब अकेला करना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू, एक वो नहीं रहना चाहिए मेरे अंदर कि आई एम डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. बट आपको, अगर आप इस तरीके से लेंगे दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, तो आपके लिए हमेशा एक नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा टुवर्ड्स अदर्स. कभी भी आप आगे बढ़ते हैं, कभी भी आप जाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं. आपको रहना पड़ता है, बात करनी पड़ती है लोगों से. यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद अदर्स. और सिमिलरली ये तो मेरे हिसाब से जो मेरे पेरेंट्स हैं, ग्रैंडफादर हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरी बुआ है, उन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. तब मुझे स्ट्रेस होता था, मैं उनके पास जाता था. एक हेजिटेशन कभी नहीं रहना चाहिए टू गो टू योर पेरेंट्स, है ना. अगर मुझे ये था तो मैं शायद ही इधर पहुंच पाता. कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए, और आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे खुद सब अकेले करना है. यू नीड टू
अंडरस्टैंड टीम वर्क, दूसरों की मदद एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, और आपको कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब आप मदद एक्सेप्ट करो यू आर हैंडीकैप। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरों की मदद एक्सेप्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी उनकी मदद करने की कोशिश करोगे। सो दैट इज एक मोटिवेशन होना चाहिए कि सब खुद नहीं करने का है। सब खुद करोगे तो डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, सब खुद करोगे तो डिफिकल्ट टाइम्स को के आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। सो मेरे हिसाब से मेजॉरिटी आपको खुद करना चाहिए। और मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे मदर, ग्रैंडफादर, उन्होंने बहुत हद तक मुझे अपने कंधों पे लाकर इधर पहुंचाया है। जब मैंने लिखना चालू किया था तब एक ऐसा एंथुजियाज्म नहीं था कि सबको ये भेजना है, ये करना है, वो करना है, प्रोफाइल बनाना है। मैंने अपनी फर्स्ट बुक एज अ हॉबी पब्लिश की थी एंड आई डिड नॉट वांट टू टेक इट फर्दर देन दैट। पर मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फादर है, मेरी मदर है, उन्होंने मुझे उन्होंने कई हाउसेस को, पब्लिशिंग हाउसेस को भेजा, कई न्यूज़पेपर्स को भेजा। उनके कारण मुझे कवरेज मिली और उनके कारण मैं इधर पहुंचा। उनके कारण मुझे जज्बा आया कि मुझे भी ये करना है ना, मुझे भी दूसरों से बात करना है, मुझे भी एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो उनके कारण ही मेरे ये हो रहा है, मेरे फादर के कारण, मेरे मदर के कारण। सो आई एम, मेरे फैमिली को मैं थैंक करना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहूँगा मेरी एज के लोगों को कि आप भी अपनी फैमिली पे एक यू ओ योर फैमिली, और आपको ये कभी भूलना नहीं चाहिए। Wow, so जैसे कि ध्रुव ने बोला, I mean, isn't it so inspirational at this age to talk about family, to talk about like in the world of Gen Zs? आप लोग Gen Zs हैं ध्रुव, right? Teenagers हैं. Usually जैसे ध्रुव ने mention किया, we see that you know the Gen Zs are not preferred in group because they lack certain life skills, they lack certain values. If you go, the internet is flooded with that. But I would like to tell the audience that हमारे साथ ध्रुव हैं and the values and the life skills which he possesses is his own and उनकी family की वजह से है. So basically it's like the mixture of everything. And to all the audience, especially the teenagers and the Gen Zs out there, listen to your family once because I think they are the model support. अगर एक बार ही सुनते हैं, कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता है कि okay, like sometimes it's disagreement, right Dhruv? At times it's disagreement, yeah? आपके साथ में कभी होता होगा कि हाँ, here I don't agree. But at the end आपको भी लगता होगा no I agree here because I know they are my model support. Yeah, natural बात है, natural बात है। आप, मैं ये इससे थोड़ा रिस्पेक्टफुली मैं डिसएग्री करता हूँ। हर बार हर चीज में आप अग्री नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ, और हर चीज में आपको अग्री करना भी नहीं चाहिए। आपकी ये होना नहीं चाहिए कि पेरेंट्स आपको जबरदस्ती एक रास्ते पे ले जाए और आप सोचो यही सही है। आपको अपना खुद का रास्ता बनाना चाहिए। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका सब आपका नहीं होना चाहिए, कुछ आपके पेरेंट्स का भी होना चाहिए, कुछ आपके फ्रेंड्स का भी होना चाहिए, है ना? आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स के ओपिनियन से कुछ अग्री करोगे, कुछ नहीं करोगे, बहुत नेचुरल सी चीज है ना? और आपको ये समझना जरूरी है कि कोई कंपल्शन नहीं है हर चीज पे अग्री करना। True, I think that makes a whole wholesome human and a personality, and I think that we all learn time by time. But with Dhruv, it's an advantage. He's a miraculous child and his journey has been incredibly beautiful and inspiring to so many of us. I'm inspired by his journey, the way he has been taken this far, and he still has long way to go, definitely. Also Dhruv, we have spoken about books and all. I would like to also talk about the academics because as I see that you have numerous accolades in academics as well. You're a brilliant kid. He has been into Spell B, then some zonal rank 20 medal of distinction certificate, lot of zonal ranks and gold medal in class 1 as well, qualified in an asset talent search. So many accolades Dhruv academically भी आपने achieve किए हैं. आप juggle कैसे करते हो? Because me being a writer, writing I know I call it a lonely job. I mean, being an author myself, कि writing एक थोड़ा lonely job है. You need your own space to write certain thing because your mind goes on there. आप academics और ये सब juggle कैसे करते हैं? Because 24 hours ही है हम सबके पास. कैसे करते हैं ध्रुव, आप बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में? मैंने यही बोला, बार बार वापस बोल रहा हूँ मैं कि आप सारी भार आप नहीं उठा सकते हो। आपको मदद चाहिए रहेगी। एक बहुत ही 0.1% होता है इस दुनिया का जो खुद कर लेता है सब कुछ सक्सेसफुली। और ये समझना जरूरी है कि आप
नेसेसरली 0.1% नहीं है। आपको मदद लेना ज़रूरी है दूसरों से, कब तक ही आप अकेले चलेंगे। ये मेरा बात है कि तो मेरे पेरेंट्स ने मदद की, मेरी मदर ने मदद की है मेरे एकेडमिक्स में एक हद तक, और राइटिंग तो मैं मोस्टली खुद ही करता हूँ। राइटर्स ब्लॉक होता है तो आई टेंड टू गो टू माई पेरेंट्स, उनसे बात करता हूँ, एक माइंड फॉग का क्लियर करता हूँ अपना माइंड फॉग। सो उस हिसाब से आपको कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हो। अगर आप कुछ भी मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं देन यू शुड बी एबल टू टॉक विद अदर्स। दूसरों का मदद लेना ज़रूरी है इस बात में। मैंने अपने फ्रेंड्स की मदद ली इन केस मैंने कुछ काम मिस कर दिया था या मुझे कुछ डाउट था। उसी कारण से मैं एकेडमिक्स में आगे बढ़ पाया क्योंकि मैं मदद लेने को तैयार था। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही एक ब्राइट माइंड होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब एक नहीं कर पाते हैं, उस पेस पे लर्न नहीं कर पाते हैं टीचर्स के पेस पे। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सबका अपना अलग दिमाग है, सबका अलग अलग आता है, तो इट्स नॉट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। आपको कुछ एफर्ट पुट करना है, आपको पता होना चाहिए कि वेयर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर आप वो पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ये पता था, इसीलिए मैं एकेडमिक्स में अच्छा हूँ और इसीलिए मैं जगल कर पाया। Wow, so that was an insight for all the kids at your age, especially the teenagers and to everybody कि अगर आप रुक जाते हैं कहीं तो seek for help. There's no shame to ask for help. That is a very beautiful thought जो ध्रुव ने हमको दिया कि अगर आप कहीं अटक गए हैं और आपका एक पेस अलग है, किसी टीचर से आपका पेस नहीं मैच कर रहा, तो यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प। किसी से बात करना, किसी से मदद लेना शेम नहीं है। That is also very beautiful. So that gives an insight to our audience कि हम इस तरह से अपना मल्टी टैलेंटेड लाइफ या हम जो और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं उसे जगल कर सकते हैं, which is possible and which is live with us in the form of Dhruv today. Wow, Dhruv, apart from all that, क्या आपका कोई नया प्रोजेक्ट है? Because I'm sure कि the journey has just begun for you. So what are you thinking to write next and how do you see yourself? Couple of years as a writer first, and of course academics is on the side table, it's keep on going. So any thoughts on that, Dhruv? कुछ नया लिख रहे हैं आप? आई एम सो ग्लैड कि आपने पूछा मेरे से, बिकॉज एक्चुअली मेरी अभी थोड़ा टाइम पहले ही 4th बुक कंप्लीट हुई है। एंड एज आई एम सेइंग कंप्लीट नहीं, मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ है। मैं चेंजेस के लिए अभी भी ओपन हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स जो हैं जिसको मैं जानता हूँ नॉलेजेबल है, उनसे मांग रहा हूँ अभी इनसाइट्स। और बेसिकली अभी मेरा 4th बुक खत्म हुआ है एंड आई एम ट्राइंग टू विद दैट बुक गेट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ थ्रिलर सस्पेंस, एंड वो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगी। सो मे बी मुझे ही लगता है कि मुझे बहुत बेटर कर सकता हूँ मैं उसको। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ दूसरे फॉर्म्स ऑफ फिक्शन में और नॉन फिक्शन में, स्लोली एंड स्टेडीली। तो बस यही है मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट। अभी ये 4th खत्म होगा, आगे बढ़ेंगे 5th पे। अभी तो बहुत लाइफ बाकी है। Absolutely. God is blessing you and God will definitely bless you for this. And as he mentioned, mystery thriller, wow, it sounds so interesting and intriguing to me because I read mystery thrillers. So I would be definitely looking for the next project of Dhruv. जब भी launch होगा, of course, we would be happy to bring you back to the studio. And if you would love to talk about your new project again, that would be an honor again. Also, Dhruv, maybe a last few points मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने बहुत ही यंग एज में बहुत सारी चीज़ें जगल की हैं। आपने अपनी फैमिली से बहुत कुछ एक्वायर किया है। इतना जेस्ट लाइफ में लाना, इतना डिसिप्लिन लाइफ में लाना, and the values which you spoke about, asking for help is not a shame, getting that positive attitude, listening to your parents, all that combining. What is your academic aspirations also? Because I think literary world में तो आप धमाका कर ही रहे हैं, and by God's grace, he'll be one of the best authors our country would have. But also about the academics, where do you see yourself in academic point of view? Do you have any aspirations there? You have thought about it? मैं जनरली अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहूँगा। माय फादर इज अ CA and CS, so उसी मेरा हिसाब से आई वांट टू गो इन द लेन ऑफ कॉमर्स बिकॉज उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है एंड जनरली मेरे को उस फील्ड में ही जाना है।
एज ऑफ नाउ, पर अभी भी मेरे पास तो टाइम है, थोड़ा बहुत ही है, पर तो अभी इट्स नॉट फुल एंड फाइनल, बट एक आइडिया है. I understand, but that focus you have, and that was my question कि focus होना बहुत ज़रूरी है आपके aspirations के लिए, with the discipline and dedication which Dhruv has mentioned about, कि आप जो करना चाहते हैं उसका एक line of discipline and dedication या focus बहुत important है, be it anything. I mean, it's not that you have to be a doctor only or engineer only. You can take any field and you can excel into it according to your choice and your dedication, and that's what the real example Dhruv has given us today in the episode and the podcast. Okay, some final words, Dhruv, before we like kind of wrap up, is I would again come to the point of accidental poet. So you have written some poetry also. Like when you tried poetry, like how did it just come? Because from fiction to poetry is a very different genre altogether, and because आप multi-talented हैं already, so आपने ये poetry का attempt, how did it came? And I think it's published also in anthology, yeah? Correct. So can you just give us an insight on the poetry thing? How did it just in a flash came? Yeah. So मेरी 2 books होने के बाद kind of poetry में मेरा थोड़ा बहुत interest जगा, and मुझे पेरेंट्स ने मोटिवेट किया कि आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, एंड व्हाट आई हैव रिटन इज जस्ट एक कोशिश ही है. मैंने मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे एक फॉल्ट्स हैं मेरी पोएट्री में, बहुत प्लीज नहीं हूँ अपनी पोएट्री से, पर्सनली स्पीकिंग. मैं बहुत इम्प्रूव करना चाहता हूँ अपनी पोएट्री को. आई एम ट्राइंग टू एक्टिवली राइट पोएट्री, आई एम एक्टिवली ट्राइंग टू रीड पोएट्री, क्योंकि फिक्शन से लिखना तो दूर की बात, पोएट्री को एक तरह से समझना ही बहुत बड़ी बात होती है. और मुझे लगता है कि एक वो ब्रिज है, अगर मुझे इस फिक्शन के शहर से पोएट्री के शहर तक पहुंचना है तो मुझे अंडरस्टैंडिंग का ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा. माय फर्स्ट अटेम्प्ट पोएट्री वाज डिसेंट, मैं उसको ठीक ही मानता हूँ. मुझे उसको इम्प्रूव करना है और उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे. मैं अपनी बुक्स पढ़ रहा हूँ और या But I think you should write poetry also. Is this my suggestion? Because Love Beyond Life and Fantasy and Reality is the 2 poems in the form of poetry which Dhruv has written. And Love Beyond Life is about short story format में about motherhood. So that entitles about being motherly, the love of a mother, you know, how warm and friendly a mother can be. So Love Beyond Life itself is a बहुत प्यारा सा title है poem का. Also fantasy versus reality, of course, because Dhruv fiction लिखते हैं. So I'm sure आप लोगों को पसंद आएगी. You can read the anthology. We will gonna give all the details of Dhruv's work in the description, from his books, links and everything. So आप Dhruv के बारे में और जान सकते हैं. ये एक larger than life teenager है, and I'm so glad कि मुझे आज उनसे बात करने का मौका मिला. I hope audience को बहुत मज़ा आया होगा. Dhruv, we were so honored to have you. I hope you liked it, and we would love to have you back again in the studio with your 4th book. Yeah. Before we say final goodbye, just for today to Dhruv, one last question, Dhruv, आपसे. हमारे audience को, आपकी audience को, your age group, teenagers and everybody who love to write and read, उनके लिए क्या आप कुछ टिप देना चाहते हैं? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप होती है रीडिंग राइटिंग में कि आपको पढ़ना चाहिए. मेरे भी बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, जैसे मैं अभी आई एम ट्राइंग टू इनटू फिलॉसफी में फ्रांस काफ्का, फाइडो डुडविच की पढ़ना चाह रहा हूँ. यू नो, आई एम ट्राइंग टू गो इनटू द रेल्म्स ऑफ फिलॉसफी. तो एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरियाज होते हैं, वो आपके दिमाग में थॉट्स लाते हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए सबसे पहले. और दूसरी बात, आपको कभी भी अपने बुक्स के साथ जल्दी नहीं करनी चाहिए. आपको कभी भी एक टाइम लिमिट नहीं सेट करनी चाहिए कि मुझे अपनी बुक 3 महीने में खत्म करनी है. अगर आपकी बुक को अच्छी बनने में 1 साल लग रहा है तो उसको 1 साल दो, 2 साल लग रहा है तो 2 साल दो. सो मेरा ये कि आपको कभी हरी नहीं करना है. और मेरी लास्ट टिप रहेगी, कोई भी जो भी लिखना चाहता है उसको, कि उसे एक जॉनरे में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए खुद को. उसको हमेशा डाइवर्स रहना चाहिए. जो पढ़ता है
उसको पेपर पेन पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, और वो ही मेरे हिसाब से मेरी टिप्स रहेंगी। वाओ ध्रुव, दैट वाज अमेजिंग। आई होप आप सबको बहुत सारे इंसाइट मिले होंगे आज के एपिसोड में। एंड ध्रुव क्योंकि एक मल्टी टैलेंटेड किड है हमारे साथ, राइटिंग के टिप्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। कीप राइटिंग, कीप डूइंग एंड कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ऑडियंस जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। थैंक यू ध्रुव, आई एम सो ग्लैड दैट आप हमारे साथ थे। Also stay tuned for a lot of updates on the channel. Don't forget to subscribe. This is a podcast Kahaniya by Orient 7 Production. Thank you so much. Namaste everybody.